Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We thank God that we can gather again today, this morning. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम फिर से एक बार इस सुबह एक साथ एकत्रित हो सके। Today, the whole world is celebrating the resurrection of Jesus. आज पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का दिन को वो मना रहा है। So even here, we are celebrating the resurrection of Jesus. और हम भी यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का दिन है उसका हम यहाँ पर उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। At this time, I would like to welcome each and everyone to the service. और मैं इस वक्त हर एक जन को यहाँ पर जितने जन हैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ इस सभा में। We know that you have come with expectation. मैं जानती हूँ हम जानते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर कुछ उम्मीद के साथ आए हैं। So before we proceed, I'll just read from the Word of God, Matthew chapter 28, verses 5 to Matthew 28, verses 5 to 7. हम आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मत्ती के 28 के 5 और 6 से वचन पढ़ना चाहती हूँ। 6 So I'll just request my sister to just read 5 to 8. जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूतों ने औरतों से कहा, स्त्रियों से कहा कि डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हो जिसे क्रूस पे चढ़ाया गया है। 6 He is not here, वो यहाँ पर नहीं है, for he is risen, क्योंकि वो जी उठा है। As he said, जिस तरह से स्वर्गदूत कहते हैं, come see the place where the Lord lay, और स्वर्गदूत ने उन लोगों से कहा कि आओ और देखो कहाँ प्रभु पड़ा हुआ है। And go quickly and tell his disciples that he is risen. और जाओ और जल्द उनके जितने भी चेले हैं उनसे कहो कि वो उठ चुका है। Come see that he is risen from the dead. और वो जी उठा है मुर्दों से। And indeed, such way is going before you into Galilee. वो तुम्हारे आगे गलीली में जाएगा। There you will see him. और वहाँ तुम उसे देखोगे। Behold, I have told you. देखो मैं तुमसे कहता हूँ, कह चुका हूँ। 8 So they went out quickly और वो चले गए जल्दी for the tomb उस कब्र से with fear and great joy डर और कुछ आनंद के साथ में and ran to bring his disciples word और उसके चेलों की तरफ दौड़े ताकि इस वचन को बोलने के लिए। Amen. The Word of God says that the grave is empty, the tomb is empty, Jesus has risen from the dead. The Word of God says the tomb is empty, the grave is empty, Jesus has risen from the dead. तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए जो खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कब्र को खाली कर दिया और उन्होंने उस मुर्दों से वो जी उठे। And today we're going to celebrate. Let us stand up all together and we'll just thank God for the resurrection and thank God for this life that we can look up to Him because He is our hope. Amen. हम सब खड़े हो जाएंगे इसी के साथ कि हमारा परमेश्वर फिर से जी उठा है, हम इस चीज का आनंद मनाएंगे। We just give thanks to God. हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Hallelujah, Lord, we just come before you this morning, God. We just thank you for this time, oh God, that you have given to us, oh God. As we celebrate this day, oh God, as we celebrate the resurrection, oh God, God, we know
God, as we worship you this day, as we honor you, as we hear your voice, oh God, as we hear your word, oh God, this day. Father, we just pray, oh God, let your anointing be upon us, oh God. Lord, we just dedicate to your hands, oh God. Oh God, each and every one of us here, Lord, that you will glorify your name, Lord. We just thank you once again, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Rabashaka, Rabashanda, Rabasukyanda, Rabashande. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Just yield everything into your hands, Lord, once again. In Jesus' name we ask that. Amen. And now I call Pastor Sapat to come to lead us in praise and worship. अभी मैं पास्टर सपन को बुलाना चाहूंगी कि वो आज हमारी स्तुति आराधना की ओर अगुवाई करें। Hallelujah! Hallelujah! Oh, प्रभु महिमा हो। আজি ওসাকে আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ এই পুনৰুত্থান দিনাই পালন কৰি আছো। কাৰণ ওসাকে যীশু খ্ৰীষ্টই পৃথিৱীত আহিছিলে আৰু 3 দিন পিছত আমাৰ কাৰণে জীয়াই উঠিলে। আমেন। আহক আমি নিজৰ হৃদয় আমি খুলি और प्रभु का मैं आराधना करूं, भूखों और स्तुति करूं। यीशु ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। आप पूरा भी जानो यीशु
Wow.
प्रभु मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दिसी भगवान हो सके তুমি আমার মাজত আছে প্ৰভু আজি নতুন কাম কৰিবলৈ গৈ আছে প্ৰত্যেকৰ জীৱনত প্ৰভু এই সময় যিসকলে ইউটিউব চেনেল চাই আছে প্ৰভু যিসকলে ইউটিউব চেনেলত আছে তেখেত সকলোকে তুমি আশীৰ্বাদ কৰা যিসকলে নিজৰ নিজৰ ঘৰত চাই অবহি তেওঁলোকে যি প্ৰভু আমি ঈশ্বৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে প্ৰভু তেওঁলোকক বিস্ময় কৰোঁ Hallelujah, Prabhu Mahima.
Thank you, Holy Spirit. प्रभु मैं धन्यवाद दिन्छु सुमन गौरव हो सके प्रभु तुमी किमान भाग ईश्वर हो सके प्रभु तुमी किमान मरमियाल ईश्वर हो आमी तुमार प्रेम केতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো ओ प्रभु আমি तुमार प्रेम केতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো प्रभु আমি তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিওঁ যে আমাৰ মানে কৰিলা प्रभु আমি পাহৰিব নোৱাৰো Lord Jesus thank you प्रभु উপস্থিতিৰ কাৰণে धन्यवाद दियो पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस तुम्हारा नाम गौरव हो तुम्हारा नाम महिमा कोल आराधना महिमा हमें तुम्हारा दियो यीशु क्रिस्त नाम कोल आमेन 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 यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की जय आमेन बहुत Thank you so much, Pastor Sapan. धन्यवाद बहुत बहुत पास्टर सपन को So, once again, I welcome all of you who have just joined. To celebrate this day, I would request our friends from Pasighat, Samson and Patti to come to present the special number. और जैसे कि आज हम इस दिन को जश्न में जिस तरह से जश्न मनाने जा रहे हैं तो मैं पासीघाट के जितने भी यूथ है उन लोगों को बुलाना चाहती हूँ ताकि वो अपना स्पेशल नंबर यहाँ आकर दें Praise the Lord. Hallelujah. सबको धन्यवाद जनाइछु আমি ইমান ভালকে অসমীয়া নাজানো বলে কি অলপকে চেষ্টা কৰিম অসমীয়াত গানা গাবলৈ
Thank you so much. धन्यवाद। Just today only I came to know that they are all praise and worship leader from Pasighat. आज ही मुझे पता चला कि ये सारे पासीघाट प्रेजेंट वर्शिप स्तुति आराधना के ये लोग लीड करने वाले हैं। Because this morning Pastor Mylon, she called me and she said give the greetings to all the believers. इस सुबह पास्टर माइलों ने मुझे कॉल किया था और सारे जितने भी विश्वासी हैं उन लोगों को अभिनंदन देने के लिए कहा। And she told me that Glory also, she's a very good guitar player. और उन्होंने मुझसे कहा जो ग्लोरी है वो बहुत अच्छा गिटार बजाती है। So she can help us, they can help us also sometimes in praise and worship if there is no one here. तो उन्होंने कहा कि लोग हमें कभी-कभी जो स्तुति आराधना में सहायता कर सकते हैं जब कोई यहाँ ना हो। So it's our prayer that God will bless you. ये हमारा प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आशीष करे। Whatever you're doing now, God will bless you. God will lead you. आप जो भी कर रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको अगुवाई करे। Amen. Amen। So now we have another special program. तो अभी हमारे पास और एक स्पेशल प्रोग्राम है। Now we're going to have the dance from Sobha and Sobha and Neha. तो अभी हमारे तरफ शोभा और नेहा की तरफ से एक डांस है जो प्रस्तुत किया जाएगा। So now they will have the dance now. We'll have the dance now. तो अभी हम देखेंगे। I've been
पर से जिन्होंने स्पेशल नंबर दिया। And now we have the last special number. I call Samuel to come to read the Bible verse. तो अभी हमारे पास आखिरी स्पेशल नंबर है, तो मैं सामुएल को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और बाइबल वर्स पढ़े। Hello, I'm sharing John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. God bless us. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। So now we'll pray for the offerings, and after that I'll call Pastor to come to take the time. Let us pray. Heavenly Father, we just come before you at this time, Lord. We just thank you, oh God, for today, especially, Lord, for the time that we've had, oh God, to celebrate, oh God, your resurrection, oh God. Oh Lord, we just thank you, Lord. Thank you so much, oh God. And Lord, at this time, I just pray for this offering that the people have given, oh God. We pray that you'll bless each and everyone. You'll bless those people who cannot give also, Lord, that they'll be able to give, oh God. Let this offering be used for the extension of your kingdom. Lord, we just thank you once again, Lord. We just yield everything, the time into your hands, oh God. In Jesus' name we ask and pray. Amen. 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 At this time, I just call Pastor to come forward to take the time. ऐसे में पास्टर को बुलाना चाहूंगी ताकि वो आगे का समय को दे। Praise the Lord. Hallelujah. हम एक जीवित परमेश्वर को सेवा करते हैं। Amen. We serve a living God. Hallelujah. तो आप सबको फिर से स्वागत प्रभु यीशु के बहुत बहुमूल्य नाम में। हम बहुत आशीषित हैं कि आज हम लोग यहाँ आ सके और आपके बीच में आपके साथ हम प्रभु को हम सेवा कर सके, उपासना दे सके और प्रभु की आराधना, स्तुति और उसके वचन में हम भाग लेने का भी मौका हमको मिलेगा। और आज खास करके हमारे बीच में हम प्रभु भोज भी हम लेंगे, एक साथ हम खाएंगे और हम आनंद मनाएंगे। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, क्योंकि वो आज कब्र में है या नहीं? कब्र में नहीं है, कब्र में नहीं है। एक दूसरे के पास आप मोड़ के आप कहिए, ऐसे ऐसे उंगली करना पड़ेगा। कब्र में नहीं है यार, कब्र में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने भाग लिया है, सब प्रोग्राम्स में भाग लिया है, सबको मैं दिल से हम सब लीडरशिप कहते हैं थैंक्स, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना आशा है कि आने वाले समय में और भी निकलेंगे। मैं उस दिन के लिए आशा करता हूं कि यहाँ से कोई वचन बांटेगा आप लोगों के बीच में, सिर्फ एक नहीं कई और सच बोले तो प्रभु का काम बहुत है इस शहर में, हमारे राज्य देश में, विभिन्न जगह में बहुत काम बहुत है। हमें चाहिए कौन कौन उठेगा, प्रभु उठाएगा, हम निकलेंगे, वचन बांटेंगे और लोगों को उनकी मुसीबत से, उनकी बुरा हालत से हम उठाएंगे। यही हमारा दायित्व है, यही हमारा बुलाहट है। आमीन। तो जितनी भी समय है प्रभु ने दिया है हम लोगों को, उस समय को हम इसी में हम बिताएंगे कि
प्रभु के जीवित वचन हम लोगों तक हम पहुंचा देंगे। प्रभु के सामर्थ, प्रभु की हीलिंग, प्रभु की छुटकारा। हालेलुया। इतना बड़ा घटना होने के बाद कब्र में से, मुर्दों में से प्रभु जी उठा है। हालेलुया। अपने लिए नहीं, हमारे लिए। आमीन। तो कुछ बनता है हमारी तरफ से। हालेलुया। हमें कुछ करना चाहिए। आमीन। तो आज मैं एक वचन मैंने तैयार किया हूँ, और उस वचन की तरफ जाने से पहले मैंने अनुरोध किया हमारे एक सिस्टर मुमी से कि वे आकर वो भाग हमारे बीच में पढ़े। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और अब सब सुनेंगे और फिर हम वचन की तरफ हम जाएंगे। आओ। মই মঠি 28 পৰা 10লৈ পঢ়িব লাগিছে। কিন্তু পৰিশ্ৰম আৰু অতিথ হৈ সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনত আৰম্ভ হৈছে চাকিলে। মেডাম আৰম্ভ হৈছে চাকিটো মৰিয় আৰু আনমৰিয়মে মেডাম পাছলৈ গ'ল আৰু চোৱা বৰ ভূমিকম্প হ'ল, কিয়নো প্ৰভু দূতে স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহি শিলচোটা বগৰাই নি তাৰ ওপৰত বহিল। তেওঁ বদন বিজুলীৰ নিচিনা আৰু বস্তু হিমৰ দৰে শুক্ল, আৰু তেওঁ ভয়তে বিলাকৰ পকি পকি মৰাৰ নিচিনা হ'ল। কিন্তু সেই দূতে মাত লগাই তিৰোতা কেইজনক ক'লে, তোমালোকে ভয় নকৰিবা, কিয়নো ক্ৰুচত হত হোৱা খ্ৰীষ্টক তোমালোকে বিচাৰিছা বুলি মই জানিছোঁ। তেওঁ ইয়াত নাই, কিয়নো যেনেকৈ তেওঁ কৈছিল তেনেকৈ উঠিল। আহা তেওঁ গ্ৰহণ কৰা ঠাইত চোৱাহি, আৰু তোমালোকে বেগাই গৈ তেওঁ শিষ্যবিলাকক এই কথা ক'বলৈ যে তেওঁ মৃত্যুবিলাকৰ মাজত পৰা উঠিল, আৰু চোৱা তোমালোকৰ আগেহে তেওঁ গালিললৈ গৈছে। তোমালোকে তাতে তেওঁ দৰ্শন পাবা। চোৱা মই তোমালোকক ক'লোঁ। তাতে তেওঁলোকে ভয় আৰু মহা আনন্দেৰে মেডামৰ পৰা বেগেতে গুচি গৈ উত্তৰ তেওঁ শিষ্যবিলাকক সংবাদ দিলেগৈ লৰি গ'ল। তাতে চোৱা যীশুৱে তেওঁলোকক সাক্ষাৎ হৈ ক'লে, তোমালোকৰ মংগল হওক। তাতে তেওঁলোকে ওচৰলৈ আহি তেওঁ চৰণত পৰি প্ৰতিবাদ কৰিলে। আমেন। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। फर्स्ट टाइम शायद। हाँ, लेकिन ऐसा करके हम लोग
भाग लेने की कोशिश करेंगे। आमेन। वचन, क्योंकि वचन हमारा लाइफ है, वचन हमारे जीवन है। हमें घर में पढ़ना चाहिए, चर्च में पढ़ना चाहिए, और उस वचन को हम डेली पालन करने की कोशिश हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो सिस्टर ने जो पढ़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे प्रभु यीशु के जीवन में। हमने देखा परसों शुक्रवार के दिन हमने देखा कि कैसे यीशु मरा क्रूस पे हमारे लिए। आमेन। ही डाइड फॉर अस। खुद के लिए नहीं, हमारे लिए। और खुद के लिए वो मुर्दों से नहीं जी उठा, हमारे लिए। इसका एक बहुत बड़ा असर है। और लास्ट फ्राइडे हमने देखा कि दो चोरों के बीच में एक जिन्होंने विश्वास किया वो तो स्वर्ग जा पाए, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जिन्होंने प्रभु से कहा है तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर का पुत्र है, तो कुछ करके दिखा, क्रूस से उतरा और उनको जीवन नहीं मिला है, दूसरा वाला चोर को जीवन मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब कुछ नहीं समझते हैं बाइबल में जो लिखा है, कुछ भाग कठिन है, हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर पास्टर्स, एल्डर्स, टीचर्स के शिक्षा सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ पाएँ कि वचन में क्या लिखा है। लेकिन मेरी विनती है आपसे कि जितनी हम पढ़ते हैं, जितनी हम समझते हैं, उसको हम पालन करने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु का इसीलिए पुनरुत्थान हुआ कि वो हर एक को वो बल दे, वो एक सामर्थ दे, एक क्षमता दे कि हम प्रभु की आज्ञा को पालन हम कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने बल में हम नहीं कर सकते हैं, हमें अपने दिमाग से हम नहीं चल सकते। ये आत्मिक जीवन या आत्मिक लाइफ हम अपने बल से नहीं जी सकते हैं, पर जीवित परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। इसलिए आज हम खुशी मना रहे हैं क्योंकि जीवित परमेश्वर है हमारे बीच में। वो हर एक को सहायता दे सकता है और वो देना चाहते हैं, देने के लिए वो तैयार है। आप सिर्फ हाथ बढ़ाए, उसके हाथ पकड़कर चलो उनके साथ। आमीन। और हम सब साथ में हैं। तो उस भाग में सिस्टर ने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि यीशु की मृत्यु के बाद यीशु को कब्र में ले गया। और बहुत आश्चर्य बात है कि जिस कब्र में यीशु का लाश को रखा गया है, असली में वो यीशु का कब्र नहीं था। देखिए, उन दिनों में ऐसा होता है कि अगर आपके पास पैसा होता तो घर तो आप खरीदेगा, आपके पास नौकर होगा, और आपके पास एक कब्र होना चाहिए। हर एक धनी आदमी के लिए वही एक आइटम होता है कि उनकी जायदाद, उनकी पोजीशन में होना चाहिए एक वो कब्र। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास कब्र होना चाहिए। अब याद है जब यीशु का जन्म हुआ तो यीशु का पास बाइबल कहता है कि सर रखने के लिए वो जगह नहीं था। याद है, गौशाला में, अंत में गौशाला में यीशु का जन्म हुआ। तो यीशु का लाइफ का शुरुआत कैसा हुआ? उनके पास कुछ नहीं था, गौशाला में उसका जन्म हुआ। पूरा लाइफ उसका ऐसा ही बीता है। ना घर था उनके पास, ना पैसा था। जब कार देने के समय आए हैं, टैक्स कलेक्टर आए हैं टैक्स उठाने के लिए, कार उठाने के लिए, यीशु के पास पैसा नहीं था। और अपने चेलों से कहा कि जाओ एक मछली पकड़। एक मछली को पकड़कर यीशु ने कहा उसकी मुंह खोलो, और मुंह में खुला तो जितना पैसा टैक्स के लिए जरूरत था उतना ही पैसा मिला। जिस यीशु को हम सेवा करते हैं वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत उसके सामने में झुकते हैं। सारा सृष्टि उन्होंने किया, सारे सृष्टि को बनाया, पर अपने लिए कुछ भी नहीं था। 31 साल पूरा लाइफ ऐसा ही उसका रहा। और अंत में जब उसका मृत्यु हुआ, उसका लाश रखने के लिए भी उनके पास जगह नहीं था।
लेकिन हर कदम में, हर मोड़ में प्रभु ने, परमेश्वर ने उनके लिए प्रोवाइड किया है। आज नहीं था, कल जिस चीज के लिए जरूरत है, कल परमेश्वर उसको दे दिया। आमीन। ये हमको एक चीज दर्शाता है कि यीशु का हर दिन का जो जीवन है, हर एक दिन के लिए वो परमेश्वर पिता पर भरोसा किया। He trusted the Father. वो परमेश्वर पिता पर भरोसा किया। आमीन। और यीशु ने कहा कि आप, एक शिक्षा में उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने लिए धन आप कमाते हैं और आप धन आपके पास बहुत होता, लेकिन एक दिन अगर चोर उसको ले लिया, चोरी कर दिया, तो आपका क्या होगा? एक तो आपके पास ज्यादा धन होने के कारण नींद आपका खराब हो जाता है। दूसरा, कभी भी कोई चोर आकर आपका सारा धन चोरी भी कर सकता है। संसार सिखाता है कि आपके पास पैसा होने से आपके पास कोई कुछ परवाह नहीं होगा, सब कुछ होगा आपके पास। लेकिन यीशु ने हम लोग को एक अलग चीज सिखाया कि हर दिन की जीवन की हर जरूरत के लिए परमेश्वर पिता के पास सब कुछ है जो आपके लिए जरूरत है। अब भूखा नहीं रहेगा, रात में सर रखने के लिए आपके पास बिस्तर होगा, आपके ऊपर छत होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपके सारे भरोसा धन पे होगा, तो ये गलत है। यीशु का शिक्षा यही है। और हम नहीं कहते कि जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग, उनके पास पैसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग भी, अमीर लोग भी यीशु के चेले बने हैं। लेकिन बाइबल की शिक्षा ये है, पौलुस ने लिखा तिमोथी को कि सिखाओ कि धनी लोग अपनी धन पर भरोसा ना करें, वो मेहनत करे, कमा ले, ताकि दूसरों को मदद कर सके। ये कैसा शिक्षा है? ये कैसा शिक्षा है? अगर संसार में इस तरह के लोग होते हैं तो संसार का दुख ऐसे ही मिट जाएगा, संसार से, समाज से गरीबी हट जाएगा। हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि ज्यादा धन सिर्फ थोड़े ही लोग के पास है, थोड़े लोग के पास है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो आबादी है, वो लोग तो हर दिन के लिए जूझता है, हर दिन के लिए स्ट्रगल करते हैं। हमें प्लेट में खाना रखने के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहाँ अभी तक नहीं आई। और यही हमारी प्रार्थना होता है। यीशु ने सिखाया, जब प्रार्थना करोगे इस तरह से प्रार्थना करो, हे पिता, तेरे राज्य इस धरती पे आने दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो राज्य का शिक्षा है, जो राज्य का सिद्धांत होता है, वो इस दुनिया में आए, वो इस समाज में आए। और भाई बहनों, हम उस राज्य के निवासी है, हम उस राज्य, स्वर्ग राज्य के नागरिक है। और हमें हमारे लिए एक दायित्व बनता है कि यीशु की सारी शिक्षा हम अपने समाज में तो हम पालन करें। आमीन, हालेलुया, हम उसको प्रैक्टिस करें। तो यीशु का मृत्यु भी वैसे हुआ है। देयर वाज नो प्लेस, नो टूम फॉर हिज बेरियल, नो प्लेस फॉर हिज बर्थ, नो टूम फॉर हिज बेरियल। इस तरह से कहानी उनका हुआ है इस दुनिया में। दुनिया का उद्धार करता ऐसे अपने लाइफ बिताया। और एक चीज उस भाग से जो हमको देखने मिला है, वो है कि महिलाएं जो यीशु के पीछे पीछे चलते थे, ऐसे चले कि अंत तक चेले बने। They were disciples till the end. और बाइबल हमें सिखाते हैं, मैं भी मानता हूँ बाइबल पढ़ते पढ़ते, कि जो महिलाएं जो प्रभु के पीछे चलते हैं, इनके पास बहुत बल, बहुत सामर्थ होता है कि अगर पुरुष हार जाता है, दिल टूट जाता है,
लेकिन महिलाएं का दिल नहीं टूटा। तो हमारे सारे हाँ बहनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और मैं विश्वास करता हूं कि हम देखेंगे, क्योंकि जहां जहां पे प्रभु का राज्य आगे बढ़ा है वहां महिलाएं का बहुत बड़ा योगदान रहा। आमीन। बाइबल कहता है कि मेरी मैगडलीन एंड अदर मेरी वर देयर सिटिंग ऑपोजिट द टूम। उस कब्र के सामने मत्ती का 27 और 61 कहता है कि मरियम मगदलिना और दूसरी मेरी वही थे उस कब्र के पास। और अब मोड़ के देखिए कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। कुछ दिन पहले, सिर्फ एक हफ्ता पहले, पूरा शहर यीशु को स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ। यरूशलेम के रास्ता मेन रोड पे दोनों तरफ सारे नागरिक खड़े हुए हैं, होजाना होजाना कहते हुए। आए हैं दाऊद का संतान, आए हैं राजा, और अपनी कमीज अपने कपड़ा उतार के सड़क पे रखा है ताकि यीशु उस पर चले। सबने स्वागत किया। कुछ दिन बाद यही लोग चिल्ला चिल्ला कर पिलातुस के सामने में कहा, हमने बड़ाबा को छोड़ो और इसको क्रूस पर चढ़ा दो। हमने सुना है लास्ट फ्राइडे, बड़ाबा छोड़ो, एक कातिल को छोड़ो, एक चोर को छोड़ो, लेकिन यीशु को मारो, इसको मत छोड़ो, इसको तो क्रूस पर चढ़ा। क्या हुआ? पलट गया। भाई बहनों, हमारे भी मन बहुत जल्दी पलट जाता है। एक दिन हम कहते हैं यीशु हम सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए, सब कुछ छोड़ देंगे। और फिर थोड़ा सा संकट आया, थोड़ा मुश्किल सामने आया है, भूल गया हम सारा वायदा और यीशु को हम छोड़ दिया। मनुष्य का मन ऐसा होता है, हवा का छोटा सा झोंका से हम लोग हिल जाता है, अस्थिर है, भरोसा नहीं रख सकते हैं। पर इन महिलाओं, खास करके ये दो मेरी मैगदलीना और ये दूसरी मेरी, ये लोग को अंत तक किया। पीटर ने छोड़ दिया, पीटर ने इनकार किया। चेलों में से सबसे आगे वाला चेला, चेलों के लीडर्स पीटर, यीशु को 3 बार इनकार किया, लेकिन ये महिलाएं लास्ट तक रहा। इनमें से मरियम मगदलीना, यीशु ने इनके अंदर से 7 दुष्ट आत्मा निकाला। तो इनके पास एक टेस्टिमनी थी, यीशु मेरे जीवन में आया, यीशु ने मेरे जीवन का हालत बदल दिया। मैं संकट में था, फिर यीशु ने आकर मुझे छोड़ दिया। इसलिए मैं कैसे प्रभु को छोड़ सकता हूँ? क्योंकि वो क्रूस पे गया है, क्या इसीलिए मैं प्रभु को छोड़ देगा? क्योंकि सिपाहियों ने उनको मारा है, क्या इसलिए मैं प्रभु को छोड़ दूंगा? नहीं। तो जब यीशु का मृत्यु हुआ क्रूस पर, महिलाएं ने तय किया कि हम उसकी लाश के लिए, उसकी बॉडी की, जैसे उसी समय का नियम होते थे कि बॉडी के को अनॉइंट करते थे, तेल और बहुत सारे ये सुगंध मसाला से इसका अनॉइंटिंग करते थे। तो कर नहीं पाया क्योंकि सबक आ चुके हैं, इसलिए ये दोनों गए हैं कब्रिस्तान कि अगर हमको मौका मिले तो जो दिल की इच्छा है हमारे, उस इच्छा को हम पूरा कर दें। उस इच्छा के साथ वहां गया, और अभी हमने पढ़ा है कि वहां पे जाके देखा कि अरे प्रभु तो नहीं है। जैसे मैंने कहा, महिलाएं की जो टेस्टिमनीज मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है।
जब मैं प्रभु में आया बहुत साल पहले, तब एक महिला का टेस्टिमनी मुझे बहुत छू गया। उस महिला का नाम जैकी पुलिंजर। जैकी पुलिंजर एक महिला, और जब वो 22 साल का था तब वो ब्रिटेन इंग्लैंड में था। जब से वो छोटी थी तब से वो प्रभु से बहुत प्यार करती थी और प्रभु के सारी शिक्षा पालन करने की कोशिश करती थी। और उनकी मन में एक इच्छा थी कि एक दिन में बड़ा होके मैं प्रभु का सेवा में करूँगी, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन 22 साल के समय तक जब वो अप्लाई किया अपना नाम लेकर मिशंस के लिए, वहाँ मिशनरी उस देश में जाने के लिए, इस देश में जाने के लिए एप्लीकेशन डाला है, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, किसी ने भी नहीं दिया है, ये कहकर कि तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास ना कुछ सेमिनरी बाइबल स्कूल का डिग्री भी नहीं है, तुम कैसे जा पाओगे। अंत में एक पास्टर ने इनको एक सुझाव दिया है कि तुम ऐसे करो, तुम्हारे दिल की इच्छा तो मैं जानता हूँ, तुम जाना चाहते हो, तुम मिशनरी बनकर जाना चाहते हो, इसलिए एक चीज़ करो। उस समय जहाज चलती थी, तो इस पास्टर ने कहा कि जहाज का टिकट खरीद लो, और वो भी 1 वे टिकट, रिटर्न टिकट खरीदने का ज़रूरत नहीं, 1 वे टिकट खरीद लो। कहाँ उतरेगा ये भी मत, किसी से मत कहो। नाव में जाने के बाद प्रार्थना शुरू करो, क्योंकि नाव का यात्रा उस समय 2-3 महीने चलता था। नाव में जाने के बाद प्रार्थना करो, और जहाँ परमेश्वर तुझसे कहता है उतर जा, उतर जा। तो जैकी पुलिंजर ने प्रार्थना किया, सोचा, पैसा भी कम था उनके पास, 22 साल की उम्र में सबसे सस्ता टिकट खरीदा एक जहाज में, ईस्ट पूरब जाने वाला जहाज में। और जब वो वहाँ गया, प्रार्थना करना शुरू किया, एक के बाद जब स्टेशन में वो जाने शुरू किया, उस स्टेशन में उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लास्ट में वो चाइना पहुँच गया, चाइना तक पहुँच गया, और वहाँ जहाज से उतरा है, और फिर चाइना में मिशन काम करने का शुरुआत उन्होंने कोशिश की है। और उनके आप उनकी टेस्टिमनी आप पढ़ेंगे, अभी भी वो जीवित है, अभी भी मरा। 1966 का बाद, 1966 का बाद तब वो 22 साल का था। तब हांगकांग में उन्होंने अपना काम शुरू किया, और हांगकांग आजकल हम देखते हैं तो बहुत सुंदर शहर, बहुत अच्छा शहर, लेकिन जिस जगह में जैकी पुलिंजर अपना मिशन का काम करने गया है, वो जगह ड्रग माफिया की कब्जा में था। और ड्रग्स, बेविचार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सारी जो अन्याय जो आप सोच सकते हैं, सारे खराब काम जो आप सोच सकते हैं, उस जगह में फैला हुआ था। जैकी ने जाकर वहाँ पे अपना मिशन का काम शुरू किया। उनके पास चाइनीज़ भाषा भी वो भी नहीं जानती थी, लेकिन वहाँ एक मिशन बोर्ड के साथ काम करना शुरू किया। और मैंने उसका टेस्टिमनी किताब बहुत साल पहले मैंने पढ़ा, चेसिंग द ड्रैगन। चेसिंग द ड्रैगन का 2 मीनिंग है। एक तो वहाँ ड्रैगन के बहुत मानते हैं चाइनीज़ लोग, तो वहाँ पे मिशन कर काम करने के लिए गया है, तो इसीलिए चेसिंग द ड्रैगन करके किताब का नाम रखा। और दूसरी मीनिंग ये है कि जो ड्रग्स लेते थे लोग, उसका एक शब्द है, फ्रेज, अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो आपसे कहते हैं कि ही इज चेसिंग द ड्रैगन, वो ड्रैगन को खोजता है। और वहाँ कैसे उसका जीवन था, गंदगी के बीच में, गरीबी के बीच में, कुछ नहीं थी उनके पास, लेकिन धीरे धीरे करके जो माफिया के बड़े बड़े लोग जैकी का काम पहचानने लगा है कि इस महिला तो आए हैं अपनी जान, अपनी आराम वाला लाइफ छोड़कर इंग्लैंड में, और यहाँ आए, इसके अंदर में कुछ है। जैकी के पास सिर्फ एक मैसेज थी
कि यीशु आया है आपको अपनी हालत से छुटकारा दिलाने के लिए। समय बिताए हैं ड्रग एडिक्ट्स के साथ, समय बिताए हैं जो बेविचारिक जीवन जो महिलाएं उसी में डूबा हुआ है उनके साथ, काउंसलिंग, प्रार्थना, लाइफ उनकी उधर नहीं बिताए। लेकिन जैकी के मिशन के काम के कारण से वहां के ड्रग माफिया का पकड़ कमजोर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग जो अभी भी खुद बयान देते हैं कि जैकी के मिशन के कारण से वो व्यक्ति अपनी हालत से छुटकारा मिला। तो आप समय मिलेगा तो आप पढ़िए किताब या यूट्यूब में जाके उसका लाइफ के बारे में भी आप देख सकते हैं। जैकी कुली और जैकी की तरह बहुत सारी महिलाएं जो यीशु के पीछे चले और अंत तक चले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक मिशनरी था और ये मिशनरी ये साउथ अमेरिका गया था प्रचार करने के लिए। और वहाँ जाने के बाद में जो वहाँ के लोग, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग थे, कभी भी बाहर वाला गोरा आदमी को नहीं देखा है और ये आया है प्रचार करने के लिए, गॉस्पेल लाने के लिए, लेकिन ये लोग ने मार दिया उसको। मारने के बाद में जब वापस ये चला गया ये न्यूज़ अपना घर में अमेरिका में कि ऐसा हुआ, तो उस मिशनरी का वाइफ मिसेस ये तय किया मैं फिर जाऊंगी, जिस देश में मेरे पति को लोगों ने मारा है उनको प्यार करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए मैं जाऊंगी। साउथ अमेरिका गया है, शुरू किया है अपना काम वहाँ और आज तक वो काम जारी है। जिसने मारा है उनकी पति को वो व्यक्ति आकर प्रभु यीशु को ग्रहण किया। हम ऐसे बहुत सारी कहानी हम आपके सामने में ला सकते हैं। बस ये बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि महिलाएं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हम देखते हैं हाफ से ज़्यादा महिलाएं हैं। आमीन। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। चर्च चलाने वाले सिर्फ पुरुष नहीं हैं। आमीन। आत्मिक जीवन को आगे ले जाने वाले सिर्फ पुरुष नहीं हैं। बहुत सारे प्रभु का काम जो हो रहा है पुरुष के द्वारा से भी, क्योंकि उनकी जो मिसेस है, उनकी स्त्री जो घर में बैठकर प्रार्थना किया, सपोर्ट किया, ऐसे भी है। और जो खुद भी जो महिला गए हैं मिशन फील्ड में काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, आमीन, उन्हीं के योगदान के द्वारा से अभी प्रभु का राज्य इतना आगे बढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस भाग में हमने देखा है मत्ती के 28 में, फिर से थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। बाइबल कहता है कि जब सबत का दिन, पहले वाला वर्स 28 का, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलीना और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मुकुट समान और मृतक समान हो गए। They became like that। तो ये जो सिपाही जो गार्ड कर रहे थे उस कब्रिस्तान को, देखा है कि दो स्वर्गदूत आए हैं। और स्वर्गदूत यहाँ मटी ने एक स्वर्गदूत के बारे में लिखा है, दूसरा गॉस्पेल्स में दो स्वर्गदूत के बारे में लिखा है। इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये
मैं और एक दिन में आपको बताऊंगा। लेकिन जो देखा है कि स्वर्गदूत इतनी चमक रहे हैं और भय के कारण से, क्योंकि जब स्वर्गदूत आए तो भूकंप हुए हैं, हिलने लगा वो कब्रिस्तान, और फिर ये सिपाही डर के मारे से ये लोग गिर गए हैं और गिर गए हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु रखा गया था। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा इस महिला से, इन महिलाओं से कि डरो मत, डरो मत। आई नो दैट यू सीक जीसस, मैं जानता हूं कि आप यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। आई नो यू सीकिंग फॉर जीसस, डरो मत। मैं जानता हूं कि आप यीशु को ढूंढ रहे हो, डरो मत। और फिर कहा कि देखो वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो जी उठा, जैसे उसने कहा, आओ देखो जिस जगह पे प्रभु रखा गया था। जब मैं इस भाग पर रखा तब मैंने ध्यान देना लगा, और बाइबल हमको एक सच्चाई सिखाता कि जो प्रभु की खोज में रहते हैं, जो प्रभु को ढूंढते हैं, वे लोग प्रभु को अंत में मिल जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम परमेश्वर की या सच्चाई को ढूंढते हुए हम लोग भटक जाते हैं, और जैसे इन महिलाएं भी के साथ हुआ है कि जिस जगह में गया है उस जगह में यीशु को नहीं मिला। सोचिए, उनके मन में ये बात थी कि मैं प्रभु को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। आई एम सर्चिंग फॉर गॉड, आई एम सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, आई एम सर्चिंग फॉर जीसस। मैं परमेश्वर की खोज में हूं, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, मैं यीशु को जानना चाहता हूं। और गया है लेकिन नहीं मिला। और ऐसे हमने बहुत लोग देखे हैं जो शांति ढूंढने के लिए गलत जगह में भी जाते हैं, शांति पाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि धन में शांति मिलेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास अच्छा परिवार होता तो मेरा साथ सब अच्छा सब ठीक हो जाएगा, अगर मेरी पढ़ाई ठीक होता, मेरा अच्छा नौकरी है, तो मेरे पास सब कुछ होता। ढूंढते हैं, कभी कभी ढूंढते गलत जगह में भी पहुंच जाते हैं। डरो मत लेकिन, क्योंकि प्रभु आपको सही जगह में ले जाएगा। एक बहुत सुंदर टेस्टिमनी है कि मैं भूल गया उसका नाम, आज सुबह मुझे मैंने याद करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन पता चल गया है मेरे कहीं में मैंने लिखा। एक व्यक्ति जो अब प्रभु का बहुत बड़ा दास है अभी, उन्होंने एक्चुअली यीशु को कहाँ में मिला? एक हरे कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में मिला है, और मंदिर के नीचे वाला तल में वो सो रहा था, वहाँ पे प्रभु यीशु को मिला है। प्रभु यीशु उनके साथ संपर्क करने के लिए एक सपना में आया। तो ये बहुत आश्चर्य बात कि इस व्यक्ति दिल में खालीपन उनका वो महसूस करता है, इसीलिए एक इस्कॉन टेम्पल में जाकर उस शांति को, उस खालीपन को भरने के लिए गए। आमीन, जैसे हम लोग भी करते हैं, जीवन में खालीपन हमको महसूस होता है, ये है मेरे पास भी फिर भी शांति नहीं है, जो मैंने चाहा मिला है लेकिन फिर भी शांति नहीं है मेरे अंदर। और कभी कभी खोजते हम भटक जाते हैं, गलत जगह में हम पहुंच जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका दिल देखता है। परमेश्वर आपका दिल देखता है, और जैसे ये स्वर्गदूत ने कहा, मैं जानता हूं कि आप यीशु के खोज में हैं, मैं जानता हूं कि आप यीशु को ढूंढ रहे हैं। और जैसे उस व्यक्ति को एक मंदिर के बेसमेंट में मिला है प्रभु यीशु को, वैसे स्वर्गदूत ने इन दोनों से कहा कि आओ देखो वो यहाँ नहीं है,
लेकिन जल्दी जाओ, यीशु आपको मिलने की Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु आपके दिल जानता है। अगर आप सच्चाई की खोज में रहते हैं तो आप उस मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए बाइबल में ये लिखा है, यिर्मयाह की 29 और वर्ष 13 में ये लिखा है कि you will seek me and find me when you will seek me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे जब तुम मुझे पूरे दिल से खोजते हो। हालेलुया। पूरे दिल से अगर हम प्रभु को खोजते हैं तो जरूर हमको मिलेगा। Praise the Lord. कभी कभी आप गलत जगह में पहुंच जाते हैं खोजते खोजते, लेकिन प्रभु जो आपका देखभाल करता है, जो आपके ऊपर ध्यान देता है, आपको सही जगह में ले जाएगा। Praise the Lord. You will find the truth. आपको सच्चाई मिलेगा। आमेन। यीशु ने सच कहा कि I am the way, मैं मार्ग हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं जीवन हूँ। हालेलुया। I am the truth. आपको याद है यीशु को न्याय करने के समय में पिलातुस ने कहा, What is the truth? सच्चाई क्या है? ये लोग जो तुमको मारने चाहते हैं, ये लोग कहते हैं कि समाज के लिए तुम बहुत खतरा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग कहते हैं कि तुम शांति का प्रचार करते हो, लोगों को चंगाई दिलाते हो। सच्चाई क्या है? What is the truth? और आजकल भी लोग इसी में फंस जाते हैं कि सच्चाई क्या है। और आजकल तो बहुत ही हो गया है, क्योंकि हमारे पास ये मोबाइल होता है, दिन रात आपको मैसेज ही मैसेज मिलेगा और आप कभी पागल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ऐसा लगता है सच है, वो भी सच है, ये न्यूज़ भी सच है, वो न्यूज़ भी सच है। सच्चाई क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? यीशु ने कहा, आई एम द ट्रूथ, मैं सच्चाई हूं। हालेलुया। अगर कोई भी सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई को मारने की कोशिश करते हैं, जैसे यीशु तीसरे दिन मुर्दों से उठा, वैसे सच्चाई फिर से उठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमेशा के लिए सच्चाई को दबा नहीं सकता। आमीन। और हम जो ज्योति के संतान हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, हम सच्चाई में चलते हैं, वी वॉक इन ट्रूथ। हम कभी भी सच्चाई को नहीं दबाते हैं, कभी भी हम सच्चाई को धाक नहीं देते हैं। आमीन। अगर हम धाकने की कोशिश करते हैं तो एक दिन फट से ये निकल जाएगा। इसलिए हम सच्चाई में हमेशा चलने की कोशिश करते हैं। बाइबल कहता है, आप ढूंढोगे तो मिलेंगे अगर पूरे दिल से आप ढूंढते हैं। तो क्या हुआ? इन महिलाएं को ये स्वर्गदूत ने रास्ता दिखाया। वर्स 7 कहता है कि और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वर्स 8 कहता है, और वे भारी और बड़ी आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। बाइबल कहता है कि ये लोग क्या किया? भाई और आनंद के साथ। और ये भी बाइबल हम लोग को सिखाता है कि प्रभु के साथ जब आपका मुलाकात होता है, शायद किसी ने आपको गॉस्पेल सुनाया और किसी ने आपसे कहा कि आप यीशु को ग्रहण करेगा। आपने कहा हाँ, मैं ग्रहण करूँगा। और ग्रहण करने के समय में आपके अंदर में एक छोटा सा डर भी है, अब क्या होगा मेरा। खास करके आप अगर दूसरे समाज से आए हैं तो आपके अंदर में एक डर सा रहता है, मेरा क्या होगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेगा मुझसे, मेरे समाज के लोग मुझसे क्या कहेगा।
शायद मुश्किल सामना करना पड़ेगा मुझको, मेरा भविष्य क्या होगा। एक डर तो निश्चय होता है हर व्यक्ति के अंदर में। और आज भी मैं जानता हूँ यहाँ इस रूम के अंदर में ऐसे बहुत लोग हैं, आपके अंदर में सवाल है, आपके अंदर में छोटा सा डर है कि क्या होगा मेरा हस्बैंड क्या कहेगा, मेरी वाइफ क्या कहेगी, मेरे माँ पिता क्या कहेगा, समाज क्या कहेंगे। छोटा सा डर है आपके अंदर में, साथ साथ लेकिन एक आनंद भी है आपके अंदर। क्या आनंद, क्यों आनंद? इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पाप का क्षमा हो चुका है। आमीन। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सारे जीवन का पाप का क्षमा हो चुका है, यीशु ने आपके सारे पापों को मिटा दिया, इसलिए आपके अंदर में एक आनंद। तो ये दो चीज एक जुगलबंदी की तरह आपके जीवन में चल रहा है, भाई और आनंद, भाई और आनंद। आप सोचते हैं कि सिर्फ आप अकेला इस चीज को महसूस कर रहे हैं। मेरे अंदर में 1 मिनट दर्द, 1 मिनट खुशी, 1 मिनट भाई, 1 मिनट आनंद। लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। यीशु के पुनरुत्थान के दिन से ये शुरू हुआ। लोगों के अंदर में बहुत भय और आनंद भाई और बहनों, आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रभु पर आपने भरोसा रखा है वो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Praise the Lord. आमीन। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, हर संकट में, हर मुश्किल में वो आपको साथ देगा। आमीन। जब आपको ऐसा लगता है कि सब ने आपको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी प्रभु आपको साथ देगा। आमीन। भाई और आनंद के साथ ये लोग गए हैं, और बाइबल कहते हैं वर्स 9 अगर आप पढ़ते हैं वहां, तब यीशु उन्हें मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सुखी रहो, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको धन्यवाद किया। सुंदर बात यह है कि ये 2 महिलाएं पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवित यीशु को आराधना की, यानी कि रेजरेक्टेड, जो मुर्दों से जी उठा यीशु, उसको पहली आराधना करने वाले लोग ये 2 महिलाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा दिल बहुत नरम हो जाता है जब मैं सोचता हूँ कि इन 2 महिलाएं में से एक महिला जिसका जीवन बहुत ही खराब था, जिसके जीवन में परिवर्तन आया है, 2 महिलाएं में से जो रेजरेक्टेड जीसस को पहली आराधना करने वाली को सेवा करने के लिए हम लोग, तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। तो यीशु ने क्या कहा? डू नॉट बी अफ्रेड, गो टेल माय ब्रदर्स, डरो मत, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि हम मिलेंगे गलील में। पढ़ने से आपको कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन आपको याद होना चाहिए, कुछ समय पहले जिन व्यक्तियों को यीशु कह रहे मेरे भाई, यही लोगों ने यीशु को छोड़ा था। यीशु के भाई ने उनको छोड़ा था लास्ट में, जब यीशु संकट में था, अकेला था, तो उनके भाई उनको छोड़ दिया। पीटर, जॉन, एंड्रू सब छोड़ दिया है। और लास्ट में पुनरुत्थान के बाद यीशु ने ये नहीं कहा कि जाओ उन चेलों से कहो जो मुझको छोड़ दिया था, जो मुझको अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए, उनसे कहो कि जाओ गलील, हम वहां मिलेंगे। नहीं, मेरे भाइयों से जाओ, मेरे भाई से जाओ, कहो दे आर माय ब्रदर्स। भाई बहनों, आपने समझ लिया, यीशु ने जिन लोगों
उनके जीवन में गलती किया है, उस गलती को नहीं पकड़ा है, उस गलती को नहीं पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस गलती को नहीं पकड़ा है, लेकिन यीशु ने कहा गो टेल माय ब्रदर्स। वो सिर्फ मेरे चेले नहीं है, वो सिर्फ मेरे साथी नहीं है, मेरे भाई है। They are still my brothers। प्रभु के भवन में, परमेश्वर के परिवार में आपको ऐसे घटना आपके जीवन में घटेंगे, आप देखेंगे कि लोग आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, और आपके अंदर में एक आवाज़ कहता है कि मैं कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं सकता। एक घाव की तरह आपके अंदर में रह गया है। लेकिन यीशु हमको ये सिखाता है, पुनरुत्थान करने वाला व्यक्ति पुरानी गलती को नहीं पकड़ते। हालेलुया। बाइबल हमको यही सिखाते हैं। अगर हम पुनरुत्थान की शिक्षा तो बहुत गहरा है, बहुत गहरा। और बाइबल कहता है, पौलुस ने तो कहा अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, व्यर्थ है। हम अभी भी अपने पाप में पड़े हुए हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मुर्दों से उठकर जीवित होकर हमको आशा दिया। हमें और यीशु ने एक बार अपने चेलों से कहा, लास्ट में जब लास्ट सफर खाए थे, अभी हम लोग लास्ट सफर में, हम लोग लॉर्ड सफर में आएंगे। लॉर्ड सफर खाने के समय में यीशु ने कहा, मैं ये प्याला मैं फिर से नहीं पीऊंगा जब तक आप लोग मेरे राज्य में आए और हम एक साथ पिए। इसका कई अर्थ होता है, लेकिन मेरे लिए ये अर्थ बहुत बहुमूल्य है कि जो प्रभु को एक्सेप्ट करने वाले लोग ये सब परमेश्वर के राज्य का नागरिक है, और हम आज परमेश्वर के राज्य में ही हम प्रभु बोझ हम यीशु हमारे साथ है। इस लॉर्ड आमीन, हालेलुया। तो आइए भाई और बहनों, हम प्रभु के मेज में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आके हमारे भाई सपन भी हम इसके तैयारी में रहेंगे। आइए हम अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं। मरने से पहले यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया और यीशु ने रोटी लिया, रोटी को तोड़ा और अपने चेलों से कहा कि ये मेरा शरीर है जो आपके लिए तोड़ा गया है। और फिर दाखरस लिया है, दाखरस से पिया, चेलों को भी पिलाया और उनसे कहा कि ये मेरा लहू है जो आपके लिए बहाया गया। भाई बहनों, ये यीशु का मृत्यु एक ऐतिहासिक सच्चाई। यीशु मरा और संसार के जो नास्तिक हिस्टोरियंस भी इस चीज़ को मानते हैं कि यीशु ने क्रूस में मरा, और मरने से पहले यीशु ने ये स्थापित किया कि जब जब भी आप लोग इकट्ठे होते हैं, मुझे स्मरण करना, मेरी मृत्यु स्मरण करना कि मैंने अपनी जान दिया है आपके लिए, मैंने कोरा खाए हैं आपके लिए, मैंने लहू बहाए हैं आपके लिए। और जब भी आप इस प्रभु भोज को खाओगे और इस प्याला कटोरी को आप पिएंगे, तब स्मरण करना कि ये सब मैंने किया आपके लिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो भाई बहनों, हम लोग प्रभु भोज में भाग लेने जाएंगे और
शायद आप पूछते हैं कि पास्टर क्या मैं भाग ले सकता हूँ? और मैं आपसे खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप भाग ले सकते हैं। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, अगर आप मन फिराए हैं, तो आप भाग ले सकते हैं। आपके पास एक सवाल भी हो सकता है कि पास्टर, मैं अपने जीवन को परफेक्ट तो नहीं चलाया, क्या मैं भाग ले सकता हूँ? बाइबल आपको सिखाता है कि आप भाग ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले बाइबल कहता है कि आप ध्यान दें। अगर आपके मन में कोई गलती आपको याद आ जाती है कि आपने की है, खाने से पहले, पीने से पहले उस पाप के लिए आप माफ़ी मांगे। और बाइबल कहता है कि यीशु तैयार है, वो रेडी है, खून बहाया इसीलिए कि आपको माफ वो कर सके। तो हम लोग ये कटोरे और ये पीठा आप तक हम पहुंचा देंगे। मैं पास्टर सपन से अनुरोध करता हूं कि वो ये कटोरे आप ले जाइए और हमारे भाई रूपज्योति और भाई अभिजीत हसन अभिजीत को आप ये पीठा आप बांटिए। हम लोग लेंगे और हाथ में पकड़ेंगे और एक साथ खाएंगे। पौलुस ने ये कहा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और ये कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। हालेलुया। आमीन। सभी को मिले हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु
कि आप क्रूस में मरा है और उस क्रूस में प्रभु आपने लहू भी बहाया, प्रभु आपने कोरा खाया है और उस कोरे खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु लहू बहाने से प्रभु हमारे सारे पापों का क्षमा हुआ है। और आज प्रभु जैसे आपने स्थापित किया, प्रभु हम भी इकट्ठे हुए हैं उस मृत्यु को स्मरण करने के लिए। और प्रभु हम जानते हैं कि उस मृत्यु का असर हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। पिता, हम याद करते हैं कि जो आपने किया है हमारे लिए प्रभु, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष है। थैंक यू फादर। आइए हम पीठा से हम भाग लेते हैं, तोड़ के हम खा लेते हैं। Thank you Lord for the body that was crushed. धन्यवाद पिता उस देह के लिए जो कुचल गया है। Thank you Lord for bearing the marks on your body. धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने शरीर में पूरा खाया है और जैसे आपका वचन कहता है, By your stripes I am healed. आपके कोरे खाने से हम चंगे हुए हैं। लॉर्ड, मैं यहाँ जितने भी भाई बहन हैं, अगर हमारे बीच में कोई बीमार है प्रभु, लॉर्ड हम घोषित करते हैं कि आपकी चंगाई उन तक पहुँच जाए प्रभु। लॉर्ड, वी स्पीक योर हीलिंग, वी स्पीक योर हीलिंग, वी प्रोक्लेम योर हीलिंग। हम घोषित करते हैं आपकी चंगाई। थैंक यू फादर। आइए हम कटोरी में से भाग लें। थैंक यू जीसस फॉर द ब्लड कवर्स। धन्यवाद यीशु उस लहू के लिए जो बहा, उस लहू के कारण से हम अपने पापों से मुक्त हुए हैं और उस लहू के कारण से प्रभु हम एक पवित्र मार्ग में हम चल सकते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो इस कटोरा से भाग लिया है कि लॉर्ड आप उनको अब शक्ति दे, अब सामर्थ्य दे प्रभु कि वो एक पवित्र जीवन जी सके। दुर्बलता के बीच में, परीक्षाओं के बीच में, मुश्किलों के बीच में एक पवित्रता के मार्ग पे वो चल पाएंगे। लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन कहते हैं कि इफ वी कन्फेस आवर सिंस, ही इज फेथफुल टू फॉरगिव अस ऑफ ऑल आवर ट्रेसपासेस एंड टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। आपके वचन कहता है कि अगर कोई पाप करते हैं और उस पाप के लिए पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तो आप विश्वास योग्य हैं उस पाप को क्षमा करने के लिए और सारी आध्यात्मिकता से उस व्यक्ति को शुद्ध कराने के लिए। ओह हालेलुया, वी थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फॉर द ब्लड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए हम लोग सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। जब हमारे भाई इस कटोरे को कनेक्ट करेंगे, हम लोग एक साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेट अस ऑल प्रे टुगेदर। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया, वी गिव यू ऑल द प्रेज। वी ब्लेस यू, वी ऑनर यू।
We give you the glory, Lord. We give you the glory. हम धन्यवाद देते हैं. Oh Lord, हम महिमा देते हैं प्रभु, Lord God. Oh God, we thank you, we thank you, we thank you. We give all the glory to you, Lord. We thank you, Father. We thank you for the body. We thank you for the blood, oh God. We thank you for this fellowship, oh God. And fellowship के लिए हम धन्यवाद देते हैं. एक सहभागिता के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, Lord. Oh hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, we thank you. We praise you, we bless you. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. 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 आप बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं? आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं और लास्ट गीत हम लोग गाएंगे. पास्टर सफल से मैं अनुरोध करता हूँ. आओ कभी प्रभु को मिलते हैं बाकी Love me
कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु। जो कुछ हमने किया है पिता लॉर्ड, आपकी उपस्थिति में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कुछ हमने किया है प्रभु, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्डअप करने के लिए, आत्मिक जीवन को और भी मजबूत कराने के लिए होता है पिता। लॉर्ड, हम निकलेंगे यहाँ आपके वचन के साथ, आपके सामर्थ के साथ प्रभु, आपकी आत्मा के साथ पिता। और लॉर्ड, हम पूरे हफ्ता हम फेस करेंगे सारे चुनौती, चैलेंजेस प्रभु लॉर्ड, आपके सामर्थ में पिता प्रभु। और हम अगले हफ्ता फिर से मिलेंगे यहाँ आपको महिमा स्तुति दिलाने के लिए। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सामर्थ और सहभागिता हर एक के साथ होगा, आज और कल और हमेशा के लिए रहेगा। आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा सोचना, आप लोग जल्दी मत जाइए, नीचे चाय तैयार है आपके लिए, तो नीचे चाय पी के जरूर जाइए। आज जो हाउस फेलोशिप हम लोग का होता है संडे, दिल्लीकेला में नहीं होगा, ये हाथीगांव में होगा हमारा घर। तो हम कोशिश करेंगे कि 2:30 बजे इसको हम शुरू करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से हाथ मिलाइए। आमेन।